because of the volcanic rocks. Now we are on top of the Mount of Beatitudes. Supposedly somewhere here the Sermon on the Mount happened. Don't ask me if it's here, if it's there, if it's inside the church. Nobody knows. We assume this is the place. सो ये जो माउंट ऑफ बेटिट्यूड है जहाँ पर पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने दिया था, तो ये यहीं पे दिया था पता नहीं, ये माउंटेन पे, ये पहाड़ पर कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये चर्च की तरफ जब हम देखते हैं तो ये चर्च को जो काला पत्थर लगा हुआ है, जैसे हमने कहा कि ज्वालामुखी में जो पहाड़ बना है उस पहाड़ का ये काला पत्थर है। Late 19th century, the Franciscan want to build a church here on top of the Mount of Beatitudes, and they have the best architecture called Antonio Berluzzi. Remember the name, Antonio Berluzzi, or we can call him Berluzzi. फ्रांसिस्कन लोगों ने जब भी सोचा कि यहाँ पर हम चर्च बनाएंगे तो उन्होंने इस दुनिया का जो सबसे अच्छा आर्किटेक्ट है उसको बुलाया, जो ये नाम है अंतोलिनो बर्लुस्की। इसको ध्यान रखना क्योंकि इसने आगे जाके हम बताएंगे। तो ये एंटोनियो बर्लुस्की, तो ये चर्च उन्होंने बनाया। He does in this church something amazing. You don't see it in any other churches. उन्होंने इस चर्च में जो किया है वो बाकी चर्चों में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ अद्भुत किया है यहाँ पर। It's other than the shape. If you look at the shape, it's called octagonal. Octagonal. No. Hexagonal. It's 8 ना, octagonal. अगर ये चर्च का अगर हम लोग शेप देखेंगे तो अष्टकोणी है, ये ना 8 कोण है, अष्टकोण। What does that mean? 8. Why is 8? 8 Beatitudes in Matthew. I said how many? 8. धन्यवचन जो है, धन्यवचन 8 है, इसलिए इसका जो शेप है वो अष्टकोणी है। Also, if you look at the windows, they are look like today's wide screen. If you go to a theater to watch a movie, it's a wide screen. This is 200 years old, ladies and gentlemen. ये 200 साल पहले का चर्च है, लेकिन अगर आप उसके जो खिड़कियां देखोगे तो ये ये जो नीचे की जो खिड़कियां है, ये जैसे एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसकी वो खिड़की जैसे मूवी थिएटर होता है, वैसे उसकी खिड़कियां उन्होंने 200 साल पहले बनाई है। Also, he did one thing. Usually in the church, Christian church, the altar has to face. Do you know which direction? The altar. कहाँ पर फेस किया जाता है? East. Why east? Because Yahweh told Moses. Yahweh. Because it's written in the Bible, the light will come from the East side. And who's the light? Jesus. Our Savior, the Lord Jesus. Jesus. It's coming from the east. So when we wait for the Messiah, we look at the east because He's coming from there. So that's why the altar usually facing east. But Mr. Berluzzi, sorry. अच्छा, ये जो अल्टर रहता है, जो वेदी रहती है, ये हमेशा पूर्व की तरफ होती थी, क्योंकि मसीह जो यहूदी लोग समझते थे कि जो लाइट, जो प्रकाश आने वाला है वो पूर्व से आने वाला है। और वो प्रकाश कौन था? जगत की ज्योति पूर्व से आने वाली थी, वो आने वाली है, ये विश्वास करते थे। इसलिए हमेशा जो वेदी हुआ करती थी वो पूर्व की ओर हुआ करती थी। So Mr. Berluzzi said, okay, if I was near Jesus when he was on top of this mountain, where do I look? Where Jesus do you think, if he was here, where do you think he was looking? तो वो बर्लुस्की ने ये सोचा कि अगर यीशु मसीह इस पहाड़ पर होता था तो यीशु मसीह कहाँ देखता था? समुद्र की ओर। To the lake, to the Sea of Galilee. Look how beautiful it is. This is the east? No, this is the east. So he said, who am I to take my sight away from what Jesus was looking at? So I will make the altar facing exactly the same place that Jesus was looking at, which is the lake or the Sea of Galilee. So the altar is facing this way, not the east. सो यीशु मसीह अगर बैठा होगा उपदेश देने के लिए तो कैसे बैठा होगा? वो
ऊपर ऐसे बैठा होगा, नीचे सारे लोग बैठे होंगे और यीशु मसीह की नज़र गलील समुद्र की ओर रही होगी। तो बर्लुस्की जिसने ये चर्च बनाया वो कहता है मैं कौन हूँ कि जब यीशु मसीह ऐसे बैठा है और मैं अल्टर ऐसे करूँगी तो उसकी ओर मुंह न करते हुए मैं अलग अपना मुंह क्यों फिराऊँ। इसलिए ये जो चर्च है स्पेशली इसका जो अल्टर है वो ईस्ट की ओर नहीं है परंतु गलील समुद्र की ओर फेस करते हुए है। And that's why, okay, that's why the altar is facing the lake. Second thing, who donated most of the money to build the church? A guy by the name Mussolini. Mussolini. You know Mussolini? Oh, Yeah. A very great guy, Very good friend. right? He's a nice guy, good guy. No. No. ये चर्च But ये चर्च बनाने के लिए जो मुसोलिनी है, कितने लोगों ने सुना है, उसने ये पैसा दिया है, ये पैसा दिया था। Yeah, Mussolini was with the Hitler who killed Jews. this, he donated the money before the World War happened, and nobody knew if he was good or bad. So he paid so much money, he donated so much money. That's why when they built the church, they had his name on the floor at the entrance. After the World War happened and they knew how bad he was, they had a decision to take his name off. They took it off and they put the name Jesus instead. मुसोलिनी ने ये चर्च बनाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ तब पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर लोगों ने उसका नाम, क्योंकि उसने इसके लिए पैसा दिया तो उसका नाम ज़मीन पर लिखा हुआ था, तो जब पता चला कि वो अच्छा नहीं है तो उन्होंने वो नाम निकाल कर वहाँ पर यीशु का नाम लिख दिया। The last thing Mr. Berluzzi did, look at the top of the dome, he made it of brass. Why brass? Especially because at the beginning brass is very gold and shiny. With the time it becomes green. Green reflects as if it's a mirror reflecting the nature around you. Look, it's all green, and the top is green. Okay, I'll give you 5 minutes to take pictures, to walk in the church if you want the best view you can have. If you go to Thank you. चलो, अंदर से चर्च बहुत अच्छा है। और ये चर्च है जहाँ पर पोप है, उन्होंने विजिट किया था। Please come inside the church पहले sir. Please come inside the church. We will move like अंदर जाके सब ये आगे the church of Baptist. सीधा Yeah, you can tell. ये यीशु मसीह ओके, यीशु मसीह ने यहाँ पर पहाड़ी उपदेश दिया है, जो उसका हम एक चित्र वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पोप है ओके, ये चर्च ऑफ बेटिट्यूड्स है जो अष्टकोणी बनाया गया है। और we will explain them. Come inside. Come inside. We will have a prayer here. Please come inside. आ जाओ, एक राउंड कर लेते हैं। We will have a round. Round कर लेते हैं। आ जाओ। एनी टाइम ऐसे ही डेकोरेट रहता है या ये क्रिसमस नहीं, क्रिसमस की वजह से, नहीं तो नहीं था, लास्ट टाइम नहीं था। या जिथे हे असे स्टोन्स आहेत म्हणजे ते बेझेंटाईन ना, बेझेंटाईनच्या काळातले हे त्याच्यानंतर आता हे तर बर्लुस्कीने आत्ता बनवलं आहे ना। हां, ओके, आता नवीन 200 वर्षापूर्वी, ओके म्हणजे आत्ता म्हणजे 200 वर्षापूर्वी। ये आठ स्तंभ दाखवले त्यांनी. Just tell them. अच्छा, ये अष्टकोणी है, ओके। हाँ, बाहर न हे दिसतं आणि हे ये जो है लिखा हुआ है इसके ऊपर, है ना, लैटिन रहेगा तो ये लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अल्टर ये पूर्व की ओर होना चाहिए, तो ये गलील समुद्र को फेस करता हुआ है ना।
और ये जो है ये थिएटर के जैसा है ना, एम्फी थिएटर रहता है ना, उस तरह से उन्होंने मॅडम अच्छा हाँ हाँ ए तेजू ये पटकन थांबा ती पण येईल. एक सेकंड घ्या. अच्छा यांच्यासाठी एक घे ना. हां थैंक यू. प्रेज अल्लाह, प्रेज. जस्ट एक्सप्लोर दिस बाहर का दिस थिंग वेरी यीशु ब्यूटीफुल. ने यहीं फटाफट बैठकर फटाफट गो. भीड़ को देखा होगा, थके हुए लोग, दुखी दिल, उम्मीद खो चुके, और फिर उन्होंने मुंह खोला और दुनिया को उलट पुलट कर देने वाली बातें कही. धन्य है वे हृदय से दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है. ये शब्द यहाँ गूंजते हैं क्योंकि चारों तरफ की सुंदरता बताती है परमेश्वर ने सब हमारे लिए बनाया है, लेकिन असली धन्यता दिल की दीनता में है. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे. दिल की शांति देखकर लगता है यीशु का वादा सच है, और आंसू को वो देखते हैं, और यहाँ की हवा जैसे सांत्वन दे रही है. धन्य है वे जो नम्र है. ये हरे भरे पेड़, ये शान झील सब नम्रता सिखाती है. दुनिया की ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि ये साधारण सुंदरता परमेश्वर की महिमा दिखाती है. दोस्तों, ये जगह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, ये एक जीवित गवाही है. यहाँ बैठकर बाइबल खोलो और महसूस करो यीशु के शब्द अभी अभी हवा में तैर रहे हैं. झील को लहर जैसे कह रहे हो, सुनो, धन्य हो तुम. गवाही दे रही है परमेश्वर का राज्य पास है. और हरी घास, फूल सब चिल्ला के कह रहे हैं, देखो परमेश्वर कितना अच्छा है. मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये नज़ारे, ये शांति, ये धन्य वचन मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए हैं. अगर तुम भी कभी गाली लाओ तो जरूर रुकना, चुपचाप बैठना, आंखें बंद करना और सुनना. यीशु अभी अभी बोल रहे हैं, धन्य हो तुम क्योंकि तुम मेरे हो. जय मसीह.